जो स्टूडेंट्स इस चीज को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं, दे आर एबल टू अचीव दिस सक्सेस। फाइंड आउट कि लॉजिकल रीजनिंग अगर आपकी वीकनेस है तो लॉजिकल रीजनिंग में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब हर मॉक एक जैसा नहीं होता, हर मॉक में लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफरेंट हो सकता है, हर मॉक में डेफिनेटली टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द टॉपिक्स विच आर बीइंग टेस्टेड वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। अगर लास्ट मॉक का स्कोर बहुत ही गंदा आया है एंड आपके अंदर थोड़ा सा खलबली मच रही कि यार एक और मॉक दे देता हूँ, एक और मॉक दे देता हूँ, तो आप एक मॉक और दे सकते हो, बट दैट शुड बी द लास्ट मॉक ऑफ योर curriculum before CAT. Hello everyone. Now we are standing at a juncture wherein we are left with only 50 days for CAT 2025. Now, my dear friends, 50 days, I would say that it will be good enough for revision, and I would say that for the last moment, last time preparation for all the students who have started their studies already like a few months back, right? अगर आपने एक महीना पहले भी स्टडी स्टार्ट की है एंड योर क्लासेस आर गोइंग वेल, आप सारी चीजें प्रॉपरली टाइमली अटेंड कर रहे हो, राइट, and you understand that you were already late if you have started in the last month of September, then I can say that you must have finished some considerable amount of syllabus, and वो जो एक लास्ट फेज होता है ना, लास्ट फेज में आप लोग एंटर करने के लिए एब्सोल्युटली लाइक एकदम तैयार हो। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो 50 दिन बचे हैं, these 50 days which are left, let's see all the students who are actually serious for CAT 2025, they are actually serious for their careers ahead, doing their MBA from I would say if not top 3, top 5, top 10, but from a reputed college, so that they will be able to get a decent enough placement, right? So let's see how we can make most out of these 50 days and devise a weekly plan to score 99 plus percentile in the LRDI section. It's not at all difficult. I will give you a lot of examples while I'll be explaining you this plan, this strategy, how you must divide the remaining 50 days, right? So we'll be giving you plenty of examples which using which you will be able to understand कि भाई करना क्या है हमें, right? अब अभी तक जो भी मैं स्ट्रैटेजी आपको बताता था, जो भी प्लान बताता था, I used to divide the entire time, जो भी लेफ्ट ओवर टाइम होता था उसको मैं डिफरेंट मंथ्स में डिवाइड करता था। सो 90 डे स्ट्रैटेजी जो हमने देखी थी, 120 डे स्ट्रैटेजी देखी थी, तो वी बेसिकली वर वर्किंग ऑन मंथली प्लान। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 50 days. Now, monthly plan will not work. You cannot make a plan for the entire 1 month and start working on that. So we'll have to divide these 50 days in even small chunk of days. So मैंने क्या किया है, अब आपको 50 days का प्लान दिया है and I have divided into 7 weeks. So 50 days, 7 weeks. All of you are very good in calculations, है ना? तो 7 weeks and 1 extra day जिस दिन आपका CAT का एग्जाम होगा. So I have divided this entire period in 7 weeks, and हमें देखना है कि 7 weeks में हमें करना क्या है, so that we are sitting at a point wherein we are confident in logical reasoning as well as data interpretation, and we should be I would say like we should be having एक level हमने achieve कर लिया है, using which we will be able to attempt at least enough number of questions that will get us more than 90, more than 95, or even 99 percentile in LRDI section, right? So let's have a look at what we have to do. अब बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ नया नहीं करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको, राइट? सो बहुत ही नॉर्मल प्लान है, एक ऐसा प्लान है जो हर एक स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली वर्क करता है, राइट? And not only for the students who will be appearing in CAT 2025, but this plan has worked for last, like ये चीज मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, and it is working since lots of years, right? I have been teaching since 18 years, तो 18 साल में मैं हर एक स्टूडेंट को ये ज्ञान बांटता हूं, and जो स्टूडेंट्स इस चीज को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं, they are able to achieve this success. Also in this year, I can give you an example.
सो इन माई डिफरेंट सेशंस स्टूडेंट्स टेल्स मी दैट सर आपने जो एक प्लान बताया था बहुत बेसिक प्लान फॉलो करने के लिए बोला था, राइट? 4 to 5 सेट्स ऑन डेली बेसिस. सो रिलीजियसली जिन लोगों ने फॉलो किया है दे आर एट अ वेरी गुड स्टेट राइट नाउ. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. वीक 1 में करना क्या है? तो वीक 1 कहां से स्टार्ट किया है मैंने स्टार्ट किया है 11th of October till 17th of October. So I've called that this week is week number 1. हाँ, अब स्टार्ट कैसे करना है? तो अभी तक आपने कुछ मॉक्स दिए होंगे, राइट? So already 7-8 mocks हो चुके हैं. The students who have joined in ASCAT series, right? So ASCAT series is our product in which you have 30 mock test. बहुत ही अमेजिंग मॉक पेपर्स हैं, राइट? सो जिन भी स्टूडेंट्स ने ASCAT सीरीज ज्वाइन की है या फिर आपने अपने क्लास मॉक्स दिए हैं, राइट? सो यू मस्ट हैव रिटन अभी तक रैंकर्स टेस्ट भी दिया होगा. तो अभी तक जो भी आपने मॉक्स दिए हैं 4 मॉक्स, 5 मॉक्स, 6 मॉक्स, 10 मॉक्स, 20 मॉक्स, जितने भी मॉक्स दिए हैं यू स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दीज मॉक्स, राइट? अब एनालिसिस क्यों करना है? Friends, without analysis, we will not be able to determine our weak areas, our strength areas. Weak areas अगर नहीं पता चलेंगे, then we'll not be able to target those areas. हम improvement नहीं कर पाएंगे, right? So mock paper में mock जो भी आप देते हो, so mock में सिर्फ अपने आप को टेस्ट नहीं करना होता. mock का मेन पर्पस क्या होता है? अपनी वीकनेस डिटरमाइन करना. सो दैट अगर हमारे पास कुछ टाइम बचा हुआ है उस बचे हुए टाइम में हम अपनी वीकनेस पे वर्क कर सके, राइट? सो वी आर लेफ्ट विद 50 days. We are basically making a 50-day strategy, 50-day plan for CAT 2025 LRDI section. So इतना टाइम हमारे पास बचा है, enough टाइम बचा है कि हम अपनी अब वीकनेसेस पे वर्क कर सकते हैं, राइट? सो जितने भी मॉक्स दिए हैं उन सबको एनालाइज करना है. एनालाइज ऐसा मत करो कि एक कंप्लीट मॉक एनालाइज कर रहे हो. नो, you must analyze the LRDI section of all the mocks. Otherwise दिमाग में ना खिचड़ी बन जाएगी. Okay, so just analyze LRDI section of all the mocks, then analyze verbal RC, then analyze quantitative aptitude as per the suggestion from your faculty members, right? So अभी क्या करना है? LRDI section सारा का सारा analyze करना है, right? And you will have to determine your weak areas as well as your strength areas. अब वीक एरियाज क्यों डिटरमाइन करने हैं ये तो मैंने बता दिया. स्ट्रेंथ एरियाज क्यों डिटरमाइन करने हैं? बिकॉज अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रेंथ है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस रूट्स इन नेटवर्क्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, कुछ भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, देन देयर विल बी हायर चांसेस कि अगर एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन आता है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे एक सेट आता है, तो चांसेस ज्यादा है कि आप उस सेट को ब्रेक कर दोगे, उस सेट को सॉल्व कर दोगे. चांसेस ज्यादा है. मैं ये नहीं बोल रहा 100% चांसेस है, बट चांसेस ज्यादा है. सो इफ आई अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज माय स्ट्रेंथ, देन आई विल एंटर दैट पर्टिकुलर सेट एंड विल बी एबल टू सॉल्व दैट. तो ये भी पता होना चाहिए. बेसिकली व्हेनेवर वी आर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, वी शुड बी इन आवर कंप्लीट सेंसेस. ओके. Now friends, once we have determined our strengths and weaknesses, so now we'll have to start working on weaknesses, right? अब जब भी आप weakness determine कर रहे हो, okay? So first of all, you must determine that either of LR or DI, इन दोनों में से कौन सा आपका weakness है, कौन सा आपका strength है, right? So there are some students जिनका entire logical reasoning problematic है. There are some students जिनका एंटायर डेटा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम है. ओके, नाउ अगर लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम है आपको, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद लॉजिकल रीजनिंग, देन लॉजिकल रीजनिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग वीक होगा. ओके, नाउ इट मे बी पॉसिबल दैट लॉजिकल रीजनिंग आपका ओवरऑल फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. लेट्स से वेन डायग्राम 4 सेट, वेन डायग्राम मैक्सिमा मिनिमा, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में, नॉकआउट टूर्नामेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, जहां पे गोल्स फॉर गोल्स अगेंस्ट गिवन होते हैं, जहां पे आपको स्कोर लाइन भी डिटरमाइन करनी होती है, वहां पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. ओके, सो फाइंड आउट की लॉजिकल रीजनिंग अगर आपकी वीकनेस है, तो लॉजिकल रीजनिंग में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, राइट? ओके, सो टॉपिक्स डिटरमाइन करो. सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन अगर वीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं.
Okay, so if you are not good with calculation, if you are not good with interpretation of the data, right, so that means कुछ ना कुछ concepts fundamentals में problem है, right? So data interpretation में problem है तो ये overall complete data interpretation में problem होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको phobia है, आपको डर लगता है data interpretation से, जैसे ही आपके सामने numbers आ जाते हैं, right? Different type of charts आ जाते हैं, you are unable to handle, आप फंबल कर जाते हो कि अगर आपके पास 2 या 3 डेटा चार्ट्स एक साथ आ जाए। ओके, सो ये चीज डिटरमाइन करो कि भाई कहां पे प्रॉब्लम है। तो जब तक हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं करेंगे, डिटरमाइन नहीं करेंगे एंड देन प्रॉब्लम को टैप नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम ही बनती रहेगी और ये बहुत बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, वीकनेसेस डिटरमाइन करने के बाद हमें इन पे वर्क करना है। अब वर्क कैसे करना है? ओके, नाउ इस वीक में 2 या 3 दिन, 4 दिन लग जाएंगे आपको एनालिसिस करने में, वीकनेसेस डिटरमाइन करने में, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने में। ओके, सो इन दिस वीक, द रिमेनिंग डेज ऑफ दिस वीक एंड द नेक्स्ट वीक, 18 से 24 का जो वीक होगा, द नेक्स्ट वीक, वी विल हैव टू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस। अब वीकनेसेस पे कैसे करना है? डेली 5 सेट सॉल्व करने हैं। अगर आपकी वीकनेस लॉजिकल रीजनिंग है, अरेंजमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, पजल्स, वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, जो भी टॉपिक आपने डिटरमाइन किया है, फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 days यू विल हैव टू सॉल्व 5 सेट्स ऑन डेली बेसिस ऑफ योर वीक एरियाज। ओके, अब जरूरी नहीं है ना कि वीक एरिया एक ही होगा, मल्टीपल वीक एरियाज हो सकते हैं, राइट? सो वर्क फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 days एंड सॉल्व 5 सेट्स फ्रॉम दिस वीकनेस एरिया ऑन डेली बेसिस, राइट? अगर डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है तो डेटा इंटरप्रिटेशन के 5-6 सेट सॉल्व करने हैं ऑन डेली बेसिस फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 days। ओके, एंड ऑल्सो टेक 1 मॉक एट द एंड ऑफ दिस वीक, राइट? सो जब ये वीक एंड होने वाला है, 17th तक का प्लान है, तो 16th ऑफ अक्टूबर, इस दिन एक मॉक दो एंड देन उसका एनालिसिस करो, राइट? इट मे बी पॉसिबल दैट जो आपने अभी वीक में वर्क किया है, जो भी आपने अपनी वीकनेसेस पे वर्क किया है, इसका रिजल्ट यहां पे दिख जाए। इट मे बी पॉसिबल, बहुत लो चांसेस हैं, इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं दिखते, राइट? ओके, बट स्टिल पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज नेक्स्ट फ्यू मॉक्स में जब आप इंप्रूव करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट? सो दैट इज द मसाला फॉर वीक 1। अब वीक 2 में एंटर करते हैं। नाउ वंस वी आर एंटरिंग इन वीक 2, दिस वीक इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स, राइट? So in our country Diwali is the biggest festival and वो इसी वीक में आएगा, 18th अक्टूबर से 24th अक्टूबर। बट हमें कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे थोड़ा सा। डेफिनेटली फैमिली को टाइम देना है, फेस्टिवल के लिए टाइम निकालना है, बट मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस वीक, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिवाली हर ईयर आती है, फेस्टिवल्स विल रिपीट एवरी ईयर, कैट भी एवरी ईयर आएगा, but I would be sure that all of you would not like to attempt CAT once again. ठीक है? So this should be probably the last CAT examination of your life. इसी एग्जाम के बाद हमें एडमिशन लेना है। ओके, तो अब क्या करना है? इस वीक में सेकेंड डे, थर्ड डे, लाइक 18th को ये वीक स्टार्ट हो रहा है, हमने इससे पहले 16th अक्टूबर को मॉक दिया था, तो आप क्या कर सकते हो, 19th अक्टूबर को एक और मॉक दे सकते हो। ठीक है, सो थोड़ा सा लाइक एनालिसिस के बाद प्रोबेबली झटका लग सकता है, सीरियसनेस फैक्टर इंक्रीज हो सकता है। सो अब हम क्या करेंगे, इस मॉक के बाद ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर हम एनग्रॉस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दिस मॉक, राइट? ठीक है, इस मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करो एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4-5 days प्रॉपर रिवीजन करो and keep solving 4 to 5 sets on daily basis. Still work on your weaknesses जो हमने लास्ट वीक में डिटरमाइन किया था। ओके, तो जो हमने लास्ट वीक में वीकनेसेस डिटरमाइन किए अभी भी हम उन्हीं पे ही वर्क कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बोला था 7 to 8 days तक इन चीजों पे वर्क करना है, राइट? नाउ लेट्स एंटर द नेक्स्ट वीक, वीक नंबर 3, which starts from 25th of October and goes up till the end of the month, 31st of October. 31 days हैं हमारे पास इस मंथ में, ऑलराइट? अब ये यहां पे सिंपल रखना है। We'll have to attempt 2 mocks in this week. So what you can do is you can attempt 1 mock on 25th October and then
at a gap of 4 days, you can attempt the second mock, probably on 29th of October. Now, every mock comes with the analysis. जैसे ही mock खत्म होता है, उसका complete analysis करो of all the 3 sections and देखो कि कहां पे हमने इंप्रूव किया है, देखो कि क्या एक और वीकनेस हमारी सामने आई है। अब हर मॉक एक जैसा नहीं होता, हर मॉक में लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफरेंट हो सकता है, हर मॉक में डेफिनेटली टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द टॉपिक्स व्हिच आर बीइंग टेस्टेड, वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक मॉक के बाद एनालिसिस करने के बाद हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस खत्म हो जाएगा, हमारी सारी वीकनेसेस सामने आ जाएंगी, तो ये गलत है। वीकनेसेस डिटरमाइन करने के लिए you'll have to keep working on every mock, even the last mock that you will write before CAT examination, right? That will also teach you something new. Okay, so 2 mocks continue करने हैं यहाँ पे and you will have to continue with 5 sets of LR or DI. अब यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, instead of keep working on your weaknesses, because if you have already worked on your weaknesses for 7 to 8 days, डेली 5 सेट सॉल्व किए हैं, टोटल 40-45 सेट सॉल्व कर चुके हो अभी। ओके, सो वो जो वीकनेस है वो अब आपकी वीकनेस नहीं रहेगी, आप उसमें इंप्रूव कर चुके हो। सो अब आपको क्या करना है, यू विल हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग मिक्स्ड बैग ऑफ सेट्स। सो एक दिन में 3 लॉजिकल रीजनिंग के सेट कर लिए, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट कर लिए, या फिर आज लॉजिकल रीजनिंग किया, कल लॉजिकल रीजनिंग किया, परसों आपने डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिया। सो मिक्स एंड मैच करते रहो एंड कीप सॉल्विंग 5, दिस नंबर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 सेट सॉल्व करने हैं। भाई कैट में भी 5 सेट आते हैं, 4 या 5 सेट, राइट? अगर मैं लास्ट 2 इयर्स का डेटा देखता हूं तो 4 और 5 सेट्स। सो जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि आप डेली 5 सेट सॉल्व कर सकते हो, आपके अंदर इतना स्टेमिना भी होना चाहिए। स्टेमिना क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? इट्स नॉट द फिजिकल स्टेमिना दैट यू रिक्वायर, इट्स द मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्टेमिना दैट वी रिक्वायर टू सॉल्व ऑल दीज सेट्स। ठीक है, कैट में 1 सेट 2 सेट करने के बाद थक गए, दिमाग थक गया। हम ऑलरेडी वर्बल आरसी का सेक्शन करके आ रहे हैं, वर्बल आरसी में रीडिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर हम वहां से ऑलरेडी हम थोड़े से टायर हो चुके हैं, थक चुके हैं, फिर हम एलआरडीआई का सेक्शन एंटर कर रहे हैं, 1 सेट के बाद अगर हमारा दिमाग थक गया तो दूसरा सेट समझ में ही नहीं आएगा, राइट? तो अपनी काबिलियत को बढ़ाना है सो दैट यू आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व, like to brainstorm for the continuous 2 hours of CAT exam. ठीक है, हाँ चलो, तो ये वीक 3 का मसाला हो गया। वीक 3 में समझ में आ गया क्या करना है। लेट्स एंटर वीक 4, दैट इज द पेनल्टीमेट मंथ। नवंबर का मंथ अब स्टार्ट हो चुका है, राइट? सो दिस इज द मंथ इन विच वी हैव आवर CAT एग्जामिनेशन। ओके, सो नाउ we'll start this week again with mock plus analysis. अब मॉक के डेज डिसाइड कर लेते हैं। तो अगेन समवेयर इन द मिडिल, सो 1 और 2 नवंबर को लास्ट मॉक दिया था 29th ऑफ अक्टूबर, तो 30, 31 एंड 1 नवंबर ब्रेक दे दिया। 2 नवंबर विल बी द डे ऑफ द मॉक, राइट? फॉलोड बाय अनदर 3 डेज का गैप, तो 5th और 6th ऑफ नवंबर। तो 6th ऑफ नवंबर विल बी अनदर मॉक विद द एनालिसिस। सेम चीज रिपीट करनी है, ठीक है? एनालिसिस में सेम चीज रिपीट करनी है। एक और काम कर सकते हैं हम, एनालिसिस जब भी करें, सो विल अंडरस्टैंड हाउ मच वी हैव स्कोर्ड इन द प्रीवियस मॉक एंड अकॉर्डिंग टू आवर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस मॉक वी कैन सेट अ टारगेट स्कोर फॉर द नेक्स्ट मॉक। अब ये जो टारगेट फॉर नेक्स्ट मॉक है, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। सो it may be in the form of number of questions attempts. So let's say last mock में मैंने 6 questions attempt किए हैं, so now my new target should be 8 questions. ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा improvise कर सकते हैं। Let's say 6 questions attempt किए थे, इसमें से 4 correct हुए, so next में अभी accuracy कितनी है? 66% accuracy है। So next mock में थोड़ा सा increased accuracy, let's say 75% accuracy. So out of 8, 6 correct होंगे। So number of attempts भी बढ़े, number of corrects भी increase हो गए, overall accuracy percentage भी increase हो गया, right? फायदा होगा। Let's say score wise. So let's say in the previous mock that I have taken,
आई हैव गॉट 13 मार्क्स, मेरे 13 मार्क्स आए थे. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट मॉक आई शुड बी इंप्रूविंग अ लिटिल बिट, राइट? सो एटलीस्ट अपने आप को इतना टारगेट दो कि 2 प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होना चाहिए. सो 13 प्लस 6, 19, 20. So now my next target should be somewhere around 19 to 20 marks. इस तरीके से अपना टारगेट इंक्रीज करो. जरूरी नहीं है कि मैं 19-20 रीच कर पाऊं, बट डेफिनेटली आई नो माई पोजिशन इन द प्रीवियस मॉक एंड सर्टेनली जो एक होती है ना मैनिफेस्टेशन, चाह होती है कि इंप्रूव करना है. सो जिस टाइम पे मॉक दे रहे होगे थोड़ा सा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में ये चीज होगी ना कि भाई लास्ट मॉक में 13 स्कोर आया था, इस बार 15, 16, 17, 18 कुछ तो इंक्रीज हो. तो ये जो चाह है, ये मैनिफेस्टेशन है, यही आपको एक अच्छे स्कोर की तरफ लेके जाएगी. ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ वीक नंबर 5. वीक नंबर 5 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक होगा एंड दिस विल बी द लास्ट वीक जहां पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लेंगे. इस वीक के बाद प्रेशर हम रिलीज करते रहेंगे, कम करते रहेंगे. सो यहां पे अब हम 3 मॉक्स देंगे, 3 मॉक्स. ओके, एक और चीज प्रीवियस वीक में जो रह गई, एक पीवाईक्यू, 1 कंप्लीट पीवाईक्यू ये करना है आपको, 1 कंप्लीट ईयर. सो कोई भी एक ईयर उठा लो, कैट 2023 उठा लो, तीनों स्लॉट सॉल्व करने हैं, राइट? या फिर कैट 2019 उठा लो, 2 स्लॉट में आया था, दोनों स्लॉट सॉल्व करने हैं, राइट, ड्यूरिंग दिस वीक. ऑल्सो 1 सेक्शनल टेस्ट ऑन ऑल्टरनेट बेसिस. सो 7 डेज का पीरियड है, 3 डेज या 4 डेज में आप 3 या 4 सेक्शनल टेस्ट कर सकते हो. सो 1 सेक्शनल टेस्ट ऑफ LRDI ऑन ऑल्टरनेट डेज ये करना है, ठीक है? हाँ, नाउ मूविंग ऑन टू द 5th वीक. मैंने बोला था यहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर लेना है अपने ऊपर. सो विल बी राइटिंग 3 मॉक्स इन दिस वीक. 8 से लेके 14 तक का वीक है. तो लास्ट मॉक हमने 6th ऑफ अक्टूबर को दिया था, राइट? सो अब यहां पे हम 8th ऑफ अक्टूबर को एक मॉक दे सकते हैं, दूसरा मॉक 10th ऑफ अक्टूबर एंड तीसरा मॉक 13th ऑफ अक्टूबर, राइट? 2-3 दिन का गैप दो एंड दीज आर द डेज फॉर मॉक्स, राइट? ठीक है. देन इन द प्रीवियस वीक यू हैव कंप्लीटली सॉल्व्ड 1 ईयर ऑफ द PYQs. अब यहां पे आपको 2 साल, राइट? तो लेट्स से 2018 एंड 2017 कंप्लीट दोनों स्लॉट्स, दो स्लॉट्स थे. सो आपको 4 पेपर्स सॉल्व करने हैं इन दिस वीक ऑफ 2 कंप्लीट ईयर्स. ऑल्सो 1 सेक्शनल टेस्ट ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, दिस विल कंटिन्यू. ठीक है, तो ये हो गया वीक नंबर 5. नाउ वीक नंबर 6 ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द प्रेशर. ओके, सो 2 मॉक पेपर्स इन दिस वीक प्लस एनालिसिस, राइट? लास्ट मॉक दिया था हमने 13th को, तो यहां पे अब हम 15th या 16th को एक मॉक दे सकते हैं एंड दूसरा मॉक 19th को, राइट? ठीक है, सो ये 2 दिन हम मॉक दे देंगे. देन सॉल्व 1 कंप्लीट ईयर PYQ, एक पूरा का पूरा ईयर हम PYQ का करेंगे एंड 1 सेक्शनल टेस्ट ऑन ऑल्टरनेट डेज, इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट? नाउ वी आर एंटरिंग इन द लास्ट वीक बिफोर कैट, 22nd से लेके 28th. बहुत ही लाइट रखना है इस वीक को. इस वीक में ट्राई करो, कुछ नया अटेम्प्ट मत करो. ऑल्सो मॉक देने की भी जरूरत नहीं है, राइट ना? मॉक अगर बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, लाइक अगर आपने लास्ट मॉक एक अच्छे स्कोर पे खत्म किया है, सो देयर इज नो नीड टू राइट अ मॉक इन दिस वीक, राइट? सो वी वांट टू एंड ऑन अ वेरी हाई नोट. ओके, अगर लास्ट मॉक का स्कोर बहुत ही गंदा आया है एंड आपके अंदर थोड़ा सा खलबली मच रही कि यार एक और मॉक दे देता हूं, एक और मॉक दे देता हूं, तो आप एक मॉक और दे सकते हो, बट दैट शुड बी द लास्ट मॉक ऑफ योर करिकुलम बिफोर कैट. ठीक है, सो यू मे टेक 1 मॉक इफ रिक्वायर्ड. जैसे मैंने बताया है, रिक्वायरमेंट बेसिस मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है. प्रीवियस मॉक अगर बहुत अच्छा गया है, नो नीड टू राइट एनी मॉक, ठीक है, बट रिवीजन नहीं छोड़नी है. ओके, सो रिवाइज द सेट्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अर्लियर. रोज 3-4 सेट जस्ट रिवाइज कर लो जो आपने लास्ट 1.5 मंथ में सॉल्व किए हैं. ठीक है, ऑल्सो डेली 2 सेट सॉल्व कर लो, नए सेट सॉल्व कर लो, जस्ट टू मेंटेन द मोमेंटम. अब इसमें सॉल्व में अपने आप को टेस्ट नहीं करना है. आप देखो उस सेट को, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, सॉल्यूशन देखो. हमें सिर्फ अपने दिमाग को फंक्शनल रखना है. ठीक है,
राइट? सो दिमाग रुक ना जाए, लास्ट 7-8 डेज में पॉज ना आ जाए, तो जस्ट टू कंटिन्यू टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी, टू मेंटेन द मोमेंटम, वी आर डूइंग दिस थिंग. ओके. Also, one very important thing that you must follow in the last 7-8 days, keep reading some online stuff. So online कोई भी आर्टिकल उठा लो, इयन के एसेज उठा लो, ठीक है, ये वर्बल का पार्ट है, ठीक है, बट कीप रीडिंग, बिकॉज ऑन द डे ऑफ कैट हमें सिर्फ रीडिंग करनी है, एंड रीडिंग कंप्यूटर स्क्रीन पे करनी है, राइट? सो इन दीज लास्ट 7-8 डेज, वट एवर जो भी बचा हुआ है, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग सम स्टफ ऑनलाइन. फोन पे अवॉइड करना, कंप्यूटर स्क्रीन पे करो, लैपटॉप पे करो, ठीक है? सो कैट के दिन जिस टाइप की स्क्रीन हमें मिलने वाली है, ऑब्वियसली लैपटॉप्स नहीं मिलेंगे, राइट? आपको कंप्यूटर स्क्रीन्स मिलेंगी, बट लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन का साइज सिमिलर ही होता है. फोन अवॉइड करो, एंड लाइक लास्ट 7 डेज में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट? So my dear friends, I want each and every one of you to follow these steps that I have told you for an amazing score that will take you towards a wonderful college and a wonderful future, right? So friends, all the very best from my side to all of you. Have a nice time, and I'll come back again teaching you or helping you with different kind of things on regular basis. All the very best. Bye bye.